Welcome to UPSCpedia. We are back again with our series of previous year's question from UPSC Civil Services preliminary exam. Today we are going to see geography section from UPSC Civil Services preliminary exam of 2021. So before starting the questions, let's move to the analysis of the geography as a subject. So in 2019, almost 12% of questions were asked. In 2020, 5% questions were asked. That means 5 questions were asked. And in 2021, 13 questions were asked. So geography is that subject which questions are asked from different angles. It may be from human geography, it may be from environment. So various other subjects are also linked to geography, and the questions combinedly are asked. Therefore, geography becomes an important subject so as to solve multiple questions. Okay, so with that, let's also look at the sources from which we can study the geography. So the first important book to study geography as of for prelims exam is nothing but GC Leon, Goche Leon. Okay, so this book is crisp and you can even give it a read, 2-3 revisions, and you would master some of the aspects of geography. The second reference book would be Geography of India by Majid Hussain. But the most important part of geography preparation is 6th to 12th, all the NCRTs. So read these sources very well, because geography is a vast subject and it connects multiple subjects such as environment and ecology, human geography, and in human geography, the subtopics such as demography. It also connects agriculture, and UPSC has a habit to ask 2 or 3 questions related to mapping, in which rivers, national parks, mountain, passes, physical and political India, such questions come randomly. So your geography becomes very important, and it could be covered with NCRT. This makes it a very important as well as one of the avenue to get more marks. So with this, we'll start with our first question. So question number 1 says, the vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? First is burrowing animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall and soil properties. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सवाना में ग्रासलैंड होते हैं और वहां पर ट्रीज बहुत कम है, बिकॉज सवानाज आर ग्रासलैंड्स. तो स्केटर्ड जो ट्रीज रहते हैं, दे हैव सम रीजन कि स्केटर्ड ट्रीज रहते हैं और वहां पर ग्रासलैंड क्यों पाए जाते हैं, and they have given these conditions and you have to pick out that which of these conditions are responsible for it. So if you are solving this question, बहुत ही एक अच्छा लॉजिक लग सकता है इस क्वेश्चन के लिए. सो लेट्स गो टू फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन को जब हम स्पॉट करते हैं तभी हमें पता लग जाता है. तो बोरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, अभी अगर सी इन सवाना और एनी ऑफ द grasslands or any of the vegetation, if there are burrowing animals and termites, they won't work at such a large scale to decrease or to affect the development of trees all around the area. ठीक है, burrowing of animals और termites, ये जो एक्टिविटी है ये एक स्मॉल स्केल पे हो सकती है, ये बिल्कुल भी ट्रीज के टोटल कवर को अफेक्ट नहीं कर सकती. तो ये एक बहुत अवेयरनेस का चीज है कि नो वंडर बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स अफेक्ट करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे ग्रासलैंड को करेंगे क्या? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. मतलब ये थोड़ा सा हाइपरबोल है. ओके, फायर, हम ये जानते हैं कि ग्रासलैंड्स में बहुत फायर और फॉरेस्ट फायर्स का प्रॉब्लम होता है, तो सेकंड ऑप्शन जरूर आएगा. जब हमें पता चलता है कि सेकंड ऑप्शन आना ही है, वी आर एट 50-50. देखिए ए एंड सी, सो सेकंड तो आ ही जाता है. ग्रेजिंग हर्बिवर्स, ये भी रीजन हो सकता है, बिकॉज सवानाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेजिंग फील्ड्स. वहां पे बहुत सारे एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए आ जाते हैं. एंड सवानाज आर ऑल्सो हैविंग सीजनल रेनफॉल. वहां पर आधे हाफ ऑफ द सीजन इट्स रेन विच इज ऑल्सो स्केर्स, एंड हाफ ऑफ द टाइम इट इज ड्राई कंडीशन. सो देयरफॉर वहां पर बहुत सारे ग्रासेस ग्रो होते हैं और ट्रीज स्कैंटी होते हैं बहुत. ओके, सॉइल प्रॉपर्टीज वोंट बी रिस्पॉन्सिबल. सॉइल प्रॉपर्टी से एक ट्री कितना बड़ा हो सकता है वो डिपेंड कर सकता है, लेकिन इट कैन नॉट डिपेंड हाउ मच द ट्री हैज expanded or whole of the grassland is expanded. Okay, let's go to the explanation. So it was a easy question, logic apply किया जा सकता है. ये है सवाना के कुछ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि यहाँ पर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन रहता है, जो मैंने कहा. यहाँ पर लेस एनुअल रेनफॉल रहता है, तो फ्लड्स और ड्रॉट्स भी यहाँ पर कॉमन है. और यहाँ पर
ग्रासेस बहुत ग्रास रहता है, बट एट द सेम टाइम टॉल ट्रीज रहते हैं, बट दे आर वेरी स्कार्स, दे आर वेरी फार अवे. अब बरोइंग ऑफ एनिमल्स एंड टर्माइट टोटल सवाना को तो अफेक्ट नहीं कर सकता. फॉरेस्ट फायर्स, ग्रेजिंग एनिमल्स एंड सीजनल रेनफॉल, ये उसका आंसर है. एंड सॉइल प्रॉपर्टी, वेजिटेशन पे डिपेंड, वेजिटेशन सॉइल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन वेजिटेशन कितना ग्रो हो रहा है वो सॉइल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता. तो इसका आंसर है सी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस इज द जनरल सवाना रीजन. ठीक है, यहां पर पूरा सवाना रीजन है. तो आप ही सोचिए, इतने बड़े रीजन में क्या बरोइंग ऑफ एनिमल्स ग्रासलैंड्स के एक्सपांशन को कंट्रोल कर सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, so let's go to the next question. With reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. The amount of water in the polar ice caps and glacier is more than the amount of groundwater. ये सबसे easiest question था, सबसे easiest question, क्योंकि हमें इसकी एक डायग्राम को देखकर ही हमें पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या है. ठीक है, सो लेट्स, इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट्स टोटली गलत है. हमें ये पता है कि ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर से ज्यादा है. लीव अबाउट रिवर्स एंड लेक्स, ग्राउंड वाटर इज मोर देन टोटल सरफेस वाटर. तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि पोलर आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में देयर इज मोर वाटर देन ग्राउंड वाटर. तो इस डायग्राम पे जब हम देखते हैं, देखिए, दिस इज द टोटल सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर इज ऑलमोस्ट 30%. इट इज 30 times more than the surface water. And when you see glaciers, then glaciers are almost 68.7%, which are almost twice of the groundwater. So I think the question is very clear, very easy. It's B. ठीक है, let's go to the third question. Consider the following statements. ठीक है, first, moringa or the drumstick tree is a leguminous evergreen tree. Tamarind tree is endemic to South Asia. In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce, and India exports tamarinds and seeds of moringa. And seeds of moringa and tamarind can be used in production of biodiesel. पहले तो एक बात हमें समझनी होगी कि ये क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से सॉल्व होता है. जितने ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगे उतना बहुत इजी होगा हमें कोई भी स्टेटमेंट एलिमिनेट करने के लिए. लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री. सपोज आपको ये फैक्ट पता है तो यू कैन डेफिनेटली गिव आंसर, बट इफ यू डोंट नो दिस फैक्ट then also it's all right, आप इसको होल्ड पे रख सकते हो. Let's go to the second statement. Tamarind tree is endemic to South Asia. Now UPSC has this habit. UPSC always asks, is this species endemic to this? Is this animal found in this region only? Are these trees found in this region only? ये so generally these statements are very doubtful. So हमें यहाँ से हम ये इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं कि टैमरिंड ट्री साउथ एशिया में तो एंडेमिक नहीं हो सकता. और अगर हुआ भी तो एग्जामिनर के इंटेंट को समझने की कोशिश करो. अगर एग्जामिनर को कुछ चेंज करना ही है तो ये लोकेशन एग्जामिनर बहुत इजीली चेंज कर सकता है. ओके, सो ये हमें याद रखना होगा. सो एलिमिनेट टू, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं. फिर हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. हमें पता है कि टैमरिंड इज सच अ ट्री विच इज फाउंड इन ऑल ओवर द फॉरेस्ट, एंड डेफिनेटली इट इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ऑन द टॉप ऑफ दैट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो गया. तो जब हम, तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है. अब हम जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे. इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा. डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. टैमरिंड का भी हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि टैमरिंड तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हम, और हमारा जो प्रोड्यूस है टैमरिंड का भी वो भी हाई है, तो हम इसको भी एक्सपोर्ट करते हैं. और मोरिंगा जो है उसका भी हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो फोर्थ भी सही है और थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट है. फिफ्थ तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है. देखो, द सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. मैंने पहले ही बोला था कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी, और जब पॉसिबिलिटी होती है देयर इज वेरी हाई चांस. सो देयरफॉर इसका आंसर आ जाता है बी. 3, 4, 5. नाउ लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन. ये देखिए, ये तो मॉडरेट क्वेश्चन था थोड़ा मोरिंगा का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी एक ट्रिक थी. देखो, मोस्ट ऑफ द लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं दोज आर पीज, बीन्स, श्रब्स, वाइन्स एंड सम ऑफ द ट्रीज. तो जो बड़े पेड़ होते हैं वो कभी भी इतने ज्यादा लेग्यूमिनस नहीं होते, वो इतने ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते.
ओके, सो दैट्स व्हाई मोरिंगा इज नॉट एन लेग्यूमिनस ट्री, ठीक है। तो एंड सेकेंड थिंग, हमें तो पता ही होगा कि जब ओनली फाउंड इन एंडेमिक स्पीशीज, तो इसलिए हमने ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दिया। और जहां तक टैमरिंड का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इथियोपियंस ने पहले इंडिया में उसको लाया था। अरब लोगों ने फिर उस टैमरिंड को नाम तमर ए हिंद ये नाम दिया, और उस तमर ए हिंद से नाम आया टैमरिंड। ओके, इट इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलता है, और एक्सपोर्ट तो करता ही होगा, एंड ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन बायोफ्यूल। So I think we are more than clear here. Next go to the fourth question. ये देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। ये तो बहुत ही इजी है। ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे मिलता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक कॉटन सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन डेक्कन प्लेट्यू पे है, और डेक्कन प्लेट्यू एक वोल्केनिक प्लेट्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर बी आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम ये जानते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है, ये ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, उसको रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है, लेकिन वर्ड एसोसिएशन देखिए, ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू इज वोल्केनिक। आराम से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। ये डेक्कन ट्रैप्स है। डेक्कन ट्रैप्स मतलब वो शीट में बन जाते हैं। सो दीज आर द डेक्कन ट्रैप्स। और अगर थोड़ा सा मैपिंग का भी थोड़ा नॉलेज हो तो पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर ही ब्लैक सॉइल मोस्टली मिलती है, क्योंकि शुगर केन या फिर कॉटन, ऐसे जो थोड़े कमर्शियल और हाई यील्डिंग क्रॉप्स है, उनको ब्लैक रेगुलर सॉइल की जरूरत होती है, जो कि डेक्कन ट्रैप्स में मिलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, बट ये बिल्कुल मतलब 3 सेकंड में सॉल्व हो सकता है अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगाए तो। सो पर्माकल्चर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल फार्मिंग, और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन द कोड बिलो। सो लेट्स सी द ऑप्शन। Permaculture farming discourages monocultural practices, but conventional farming monocultural practices are predominant. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, conventional farming causes soil salinity and such phenomena is not observed in permaculture farming. फिर है, conventional farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture is not possible in dry regions. That means semi-arid region. Okay, and practice of mulching is important for permaculture, बट नॉट नेसेसरीली फॉर नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग। अब एक सिंपल सी डिफरेंस अगर हमें पता हो, पर्माकल्चर फार्मिंग, इसका तो मीनिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्किप इट। लेकिन देखो, कभी कभार हमें अवेयरनेस और वर्ड प्ले के साथ बहुत खेलना होता है, ठीक है। एक तो कन्वेंशनल फार्मिंग के बारे में वो बोल रहे हैं और पर्माकल्चर के बारे में बोल रहे हैं, तो जरूर ये जो पर्माकल्चर है, इट वुड बी रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी और अ गुड वे ऑफ एग्रीकल्चर। गुड वे ऑफ एग्रीकल्चर मतलब ये एटलीस्ट आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पूछा है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग और पर्माकल्चर में डिफरेंस क्या है। और अगर पर्माकल्चर का मीनिंग बताना हो तो पर्माकल्चर इज नथिंग बट परमानेंट एग्रीकल्चर इन विच द नेचुरल इकोसिस्टम, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड सच मेथड्स आर यूज विच आर सस्टेनेबल एंड दे डोंट डिसरप्ट द इकोलॉजी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे आइए और इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। See, the permaculture farming discourages the monocultural practices, but in conventional chemical farming, monocultural practices are predominant. ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? मोनोकल्चरल फार्मिंग से होता क्या है, अगर हम गेहूं ही उगाते रहे तो सॉइल, गेहूं के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उसमें वो सारे के सारे खींच लेता है ऑन एन लॉन्गर ड्यूरेशन, साथ ही साथ वो वाटर को भी एक्सेस में खींच लेता है, एंड देन सॉइल बिकम्स वेरी वेरी इनफर्टाइल। ग्रीन रिवोल्यूशन में वही हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत सारे मोनोक्रॉपिंग हुआ था। मोनोक्रॉपिंग की वजह से फूड डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, अपना जो फूड बास्केट था वो स्क्यूड हो गया। नाउ वी हैव मोर राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। सो ये सब केमिकल फार्मिंग की वजह से हुआ है। सो पर्माकल्चर मोनोकल्चर को क्या वो मतलब एनकरेज करता रहेगा क्या? नहीं, इट इज वेरी लॉजिकल, वो उसको डिस्करेज करता रहेगा। पर्माकल्चर एक्चुअली एनकरेजेस मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और इधर से ही हम 50-50 पे पहुंच जाते हैं, 1 and 3 एंड 1 to 4 पे। अब देखते हैं कि थर्ड पे क्या है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। कन्वेंशनल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming. Definitely second is correct। सेकंड भी तो करेक्ट है। अब सेकंड क्यों करेक्ट है देखिए,
पर्माकल्चर फार्मिंग पहले मैंने बताया कि सस्टेनेबल होगा, वो इकोसिस्टम को यूज करता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स यूज करता है, तो डेफिनेटली उसको पानी भी बहुत कम लगेगा। अगर उसको पानी कम लगेगा तो सॉइल सैलिनिटी भी होगी नहीं। वेरेवर केमिकल फार्मिंग इज यूज, हमें ये मालूम होना चाहिए, वेयर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज दे कैन बी ओनली यूज्ड वेयर एक्सेसिव इरिगेशन इज यूज्ड। केमिकल फार्मिंग एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स एक्सेसिव इरिगेशन। ओके, सो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि कन्वेंशनल फार्मिंग की वजह से पानी ज्यादा यूज करने से सॉइल सैलिनिटी होता है, लेकिन पर्माकल्चर में वैसा होता नहीं। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। पर्माकल्चर पानी कम यूज करता है तो ऑटोमेटिकली वो ड्राई रीजन्स में यूज हो सकता है, सो देयरफॉर थर्ड रॉन्ग है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्माकल्चर। एज पर्माकल्चर यूजेस नेचुरल इकोसिस्टम, डेफिनेटली वो मल्चिंग को भी यूज कर सकती है। अब मल्चिंग क्या है? अ लिटर इज यूज टू कवर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स सो दैट उसको न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स मिले, और साथ ही साथ it is protected from the cold as well as heat as well as external temperature. Okay, so the answer here is B. Explanation में भी वही चीजें सारी दी गई हुई है। This is the definition of permaculture. Permaculture कैसे मोनोकल्चर को अवॉइड करता है। सॉइल डिटोरिएट हो जाती है जब मोनोक्रॉपिंग होता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, 50-50% पे आ गए। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पर्माकल्चर होगा तो सॉइल सैलिनिटी होगी नहीं, और थर्ड को हम एलिमिनेट करते हैं क्योंकि पानी एक्सेस पर्माकल्चर यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहा है, तो उसका और मल्चिंग तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि पर्माकल्चर में यूज होता है, तो दैट्स वाई उसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है, तो ये रहा इमेज, देखिए कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग किया गया है, मोनोक्रॉपिंग नहीं है, ये है पर्माकल्चर एंड दिस इज मल्चिंग। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। फिर से नेटिव का क्वेश्चन आ गया। देखो, सी इट इज नॉट ऑलवेज की नेटिव की स्टेटमेंट हर बार गलत रहेगी, लेकिन एग्जामिनर के इंटेंशन को आपको समझना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत हाई चांस है कि एग्जामिनर यहाँ पर स्वाइप कर दे या फिर कुछ चेंज कर दे। ठीक है, सो द पाम ऑयल, सेकंड स्टेटमेंट इज पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। हम जानते हैं कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, लिपस्टिक, इसमें इसेंशियल ऑयल्स यूज किए जाते हैं, तो डेफिनेटली पाम ऑयल यूज हो सकता है, तो सेकंड करेक्ट है। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। मैंने पहले ही बताया था जब कैन भी आता है तो डेफिनेटली उसका आंसर, मतलब दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट एंड इट कैन बी करेक्ट। इसका आंसर आ जाता है बी। फर्स्ट हमने इसलिए एलिमिनेट किया बिकॉज पाम ऑयल इज नॉट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो ये है पाम ऑयल के बारे में। वो अफ्रीका का एक नेटिव, इट इज नेटिव टू अफ्रीका, तो जरूरी नहीं है कि हर बार नेटिव की स्टेटमेंट गलत हो जाए, लेकिन एग्जामिनर के इंटेंट को पता लगाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7, one of the most controversial question in UPSC. With reference to Indus River system, which of the following four rivers, three of them pour into one of which joins the Indus directly? Among the following, which one is such river that joins Indus directly? Simple question ये है, अगर इंडस ऐसे बह रही है तो ये सारे उसके ट्रिब्यूटरीज है। ओके, इन सारे ट्रिब्यूटरीज में से डायरेक्ट इंडस को कौन मिलती है, ये इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि झेलम उसको डायरेक्टली नहीं मिलती है, रावी भी उसको डायरेक्टली नहीं मिलती है, लेकिन चेनाब एंड सतलज बोथ मीट एंड फॉर्म अ रिवर विच इज कॉल्ड एज पंजनड, और वो पंजनड इंडस को मिलती है। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या आप चेनाब को डायरेक्टली द मेजर ट्रिब्यूटरी कंसिडर करेंगे कि क्या आप सतलज को कंसिडर करोगे? तो इसका आंसर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो इसके दो पर्सपेक्टिव्स है अगर देखने जाए तो इसका यह है कि सिंपल, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इन इंडिया आर झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज। वी शुड नो दैट झेलम एंड रवि जॉइंस इन चेनाब, बीज जॉइंस टू बीज जो है वो सतलज को ज्वाइन करती है, और फिर सतलज और चेनाब दोनों पंजनड को ज्वाइन करते हैं, और फिर वो पंजनड इंडस को ज्वाइन करती है। ठीक है, गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर चेनाब है। अब अगर हम ये कंसिडर करें कि लार्जेस्ट वॉल्यूम कौन से रिवर का है आउट ऑफ चेनाब एंड सतलज, तो वो तो चेनाब का है, तो क्या चेनाब डायरेक्टली जॉइंस टू इंडस? लेकिन अगर जब हम लेंथ देखते हैं तो सतलज की लेंथ ज्यादा है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसके लिए अगर हम कंसेप्ट समझे तो इसका आंसर आ जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, देखिए झेलम है, पीछे से चेनाब इज द वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज, झेलम चेनाब से मिल रही है, रवि भी चेनाब से मिल रही है, फिर चेनाब यहां तक आ रही है,
फिर सतलज लो ओनली आ रही है यहां से 20 तो मिल रही है सतलज से, और फिर सतलज भी चेनाब से मिल रही है और पंजनड बनकर इंडस को ज्वाइन हो रही है। तो क्या आप चेनाब को कंसिडर करोगे कि सतलज को करोगे? और मैंने पहले ही कहा गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग चेनाब है, द क्वांटिटी ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग चेनाब है, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग तो सतलज लॉन्ग है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो कभी भी जब मेजर ट्रिब्यूटरी कंसिडर करते हैं तो तीन चीजें देखी जाती है। एक तो लेंथ ऑफ द रिवर अप टू कॉन्फ्लुएंस, इसका आंसर तो सतलज आ जाता है। ओके, मीन एनुअल डिस्चार्ज, इसका आंसर आ जाता है चेनाब। और मोर स्ट्रेटर पाथ और द फाइनल फ्लो ऑफ वाटर, तो लेट्स फाइंड आउट द फाइनल फ्लो ऑफ वाटर। देखिए इंडस कहां कैसे जा रही है, देखिए इस डायरेक्शन में इंडस जा रही है, और सतलज या फिर चेनाब देखिए कैसे जा रही है, चेनाब भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, वेयर सतलज इज स्लैंट। ओके, तो इस लॉजिक से अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी चेनाब, क्योंकि आउट ऑफ दिस थ्री रूल्स चेनाब दो को फॉलो कर रहा है। सो देयरफॉर इसका आंसर मेरे हिसाब से चेनाब होना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट यूपीएससी says about this question. Okay, so with reference to India, Didwana, Kachman, Sargol and Khatu are the names of daughter. This is very difficult question. अगर आपको नॉलेज हो तो ही ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। अवेयरनेस का ये क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में सारी चीजें आपको पता हो। ओके, सो यू कैनॉट नो एवरीथिंग अंडर द सन, so you cannot even choose one option over the other. So if you know what Didwana is, Kachman is, Sargol is, Khatu is, then only you can give this answer. But there is one name which we all know, Didwana. Didwana always comes into the news because it is also IVC site. It is also IVC site and it is found in Nagaur district of Rajasthan, जहां पर पहला पंचायत इलेक्शन हुआ था। ओके, सो दिदवाना वही है। तो इसका आंसर है सलाइन लेक्स। ओके, इट्स नॉट ग्लेशियर्स, इट्स सलाइन लेक्स। ये कोई भी रामसर साइट्स में वगैरह भी नहीं है। दीज आर वेरी वेरी lakes which we these are such lakes which we don't even read anywhere, so it was a difficult question. ठीक है, लेकिन जनरल एक टेक अवे फ्रॉम दिस, there is one of the take away which we can learn from this question is that try to associate with the questions. जैसे कि बहुत सारे जो लेक्स होते हैं उनका नाम ताल से एंड होता है, सरोवर होता है, कुंड होता है, ग्रेट पर्सनैलिटीज के पीछे उनका नाम होता है लेक्स का। ओके, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, so that's why no logic and tough question. Let's go to the next question. Consider the following rivers: Brahmani, Nagavali, Subarnarekha, and Vamsadhara. Which of the following rises in Eastern Ghat? Again a difficult question. If you have mapping knowledge, then only you can solve it. So इसका आंसर आ जाता है B, Nagavali and Vamsadhara. Why? Let's see. See, ब्राह्मणी का जो ओरिजिन है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे होता है, सुबर्णरेखा का ओरिजिन रांची में होता है। ठीक है, एंड दिस बोथ आर नॉट इन ईस्टर्न घाट्स। ओके, नागावली का जो ओरिजिन है वो ईस्टर्न घाट्स में होता है, और वंशधारा का भी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा में है उधर होता है। लेट्स सी अ मैप। ये तो जनरली वंशधारा और नागावली का मैप है, यहां पर समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट लुक एट दिस मैप, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है सुबर्णरेखा, ये है ब्राह्मणी, ये एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न घाट इट्स ओनली अप टू ओडिशा, मतलब ओडिशा के नीचे, सदर्न ओडिशा के नीचे जितने भी रिवर्स आएंगे those would be passing through the eastern ghats, or maybe those rivers are having origin in eastern ghats. That's why the answer is Vamsadhara and Nagavalli. ईस्टर्न घाट्स के अबो सुबर्णरेखा और ब्राह्मणी ये झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल यहाँ पर पाई जाती है, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आई थिंक वी आर मोर देन क्लियर हियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? मतलब लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब पानी ज्यादा किसको लगता है? Am I right? अब ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक लो हैंगिंग फ्रूट है और बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। इसका आंसर है शुगर केन, और हम एक्सप्लेनेशन भी इसका जान सकते हैं। शुगर केन को इतना अपार्ट फ्रॉम नॉलेज यू कैन रीड दिस लेटर ऑल्सो। 210 लीटर्स ऑफ वाटर रखता है शुगर केन के लिए, लेकिन बहुत ही सही लॉजिक ये है कि मिलेट्स होते हैं जो कि दो ऑप्शन है, पर्ल मिलेट एंड रेड ग्राम, ये ड्राई रीजन्स में उगाए जाते हैं। और ड्राई रीजन्स में क्यों उगाए जाते हैं? क्योंकि पानी कम लगता है उनको, और सनफ्लावर को भी पानी कम लगता है। साथ ही साथ हमें यह भी लॉजिक पता होना चाहिए दैट शुगर केन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स फॉर महाराष्ट्रियन फार्मर्स हु आर फ्रॉम मराठवाड़ा एंड हु आर फ्रॉम विदर्भा। विदर्भा और मराठवाड़ा के फार्मर बस दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कॉटन और शुगर केन, और दोनों भी क्रॉप को बहुत पानी लगता है, बहुत पानी। तो इससे आंसर आ जाता है। सो थोड़ा अगर लॉजिक लगाते हैं, हजारों फार्मर सुसाइड करते हैं,
हम उस न्यूज में लगे रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो ग्रो क्या करते हैं। तो वो ग्रो कॉटन और शुगर केन करते हैं। जब क्रॉप फेलियर हो जाता है इरिगेशन की वजह से, फिर मराठवाड़ा और विदर्भ में हम सुनते हैं कि सुसाइड्स हो गए, तो उनका रियल रीजन ये कॉटन और शुगर केन की एनुअल साइकिल है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. In the tropical zone, the western section of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. In the temperate zone, the westerlies make the eastern sections of ocean warmer than the western section. अगर यहाँ पर आप मैप बेस्ड कंसेप्ट लगाए तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बिकॉज इट इज एन अप्लाइड क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. लेकिन अगर आप मैप इमेजिन कर सकते हो तो इसका आंसर आ सकता है. इसका आंसर बोथ है. अब इसका आंसर बोथ क्यों है, तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन तो सिंपल है, ये कहा, लेकिन हम मैप से जानने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज सिंपल. अगर ट्रेड विंड्स समंदर के ऊपर से अगर जाएंगे, सो डेफिनेटली दे विल टेक सम ऑफ द वाटर विद देम. एम आई राइट? सो व्हाट दे डू इज दैट दे टेक वार्म वाटर्स विद देम. ट्रेड winds, am I right? So winds which generally flow from the surface of the ocean, they take away the superficial water. So they cause the warm accumulation where they are going, and they cause cold upwelling from the place where they are moving. Okay, तो यही हो जाता है वर्ल्ड मैप पे. ये है ट्रेड विंड्स. ट्रेड विंड्स ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन जाते हैं. सो देयरफॉर वो वेस्टर्न साइड को हॉट वाटर लेके चले जाते हैं. ये जो वार्म वाटर हम देख रहे हैं सरफेस पर, वो ऐसे वार्म सरफेस पर यहां पर वार्म वाटर लेके चले जाते हैं. सिमिलरली वेस्टर्लीज क्या करते हैं, वेस्टर्लीज इक्वेटर से लेके चले जाते हैं वार्म वाटर्स को, लेकिन वेस्टर्लीज का मूवमेंट तो ईस्टर्न साइड को होता है. सो देयरफॉर ईस्टर्न साइड वार्म हो जाते हैं. तो यही उसका लॉजिक था, एंड दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर होता है फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट. ओके, आंसर इज बोथ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th. The leaf litter decomposes faster than any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of the plants, forms the reach up into the canopy vicariously by climbing the trees and growing as epiphytes rooted on the upper branches of the tree. This is most likely description of. वेरी सिंपल लॉजिक यहाँ पर लग सकता है. देखो, लीफ लिटर के बारे में बात की है, मतलब कॉनिफरस इसका आंसर नहीं रहेगा, ना ही ड्राई डिसीडियस रहेगा. बचा मैंग्रोव और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं मैंग्रोव भी गलत है. इसका आंसर हम जब अगर लॉजिकल देखने जाए तो इसका आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सप्लिसिटली बोल रहे कि लीफ लिटर इतना हो जाता है और डैम्पन्ड और मॉइस्चर कंडीशन इतने रहते हैं कि लीफ लिटर टोटली हमस में कन्वर्ट हो जाता है. और वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है. तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है. इसका आंसर यही है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट होता है, मॉइस्ट बायोम होता है, यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत होता है. तो यहाँ पर जो भी लिटर मतलब जो भी लीव्स गिर जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ग्राउंड पर गिर जाता है, वो हमस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो देयरफॉर इट्स आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो द अदर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The Global Ocean Commission grants licenses for the seabed exploration and mining in the international waters. First statement. ठीक है, India has received the licenses for seabed mineral exploration in the international waters. Second statement. And third statement is rare earth metals are present on the sea floor in the international water. पहली स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो देखो क्या लिखा है. द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ दे रहा है. मैंने पहले ही बताया था, जब भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ दे रहा है, फाउंडेड बाय, फंडेड बाय, ऐसी कोई चीज होती है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. एग्जामिनर के इंटेंट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. तो अगर आप इस स्टेटमेंट को इलिमिनेट कर देते हो, आपका आंसर आ जाता है बी, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अगर कंसेप्चुअली देखने जाए या फिर अगर हम वास्ट रीडिंग करें, तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है जो कि सी बेड एक्सप्लोरेशन का लाइसेंसिंग देती है. हमने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मतलब PMN, इन नोड्यूल्स के बारे में भी सोचा है. तो इंडिया को लाइसेंस मिला है, एंड वी कैन एक्सप्लोर इन सदर्न इंडियन ओशन. ओके, एंड रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन दी सी फ्लोर. ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट था, इसीलिए इसका आंसर आ जाता है 2 and 3. सो इन टूडेज सेशन आई होप यू गॉट द आइडिया एंड लॉजिक कि कैसे हम यूज कर सकते हैं
कि सराउंडिंग इंफॉर्मेशन या फिर जनरल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेंट हम लगाकर कैसे हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं या फिर हम इलिमिनेट कर सकते हैं. So I think we have learned many things from this lecture. Thank you. Keep learning, and we'll end the session here.